professional LinkedIn profile, establish your presence online, develop industry specific skills through LinkedIn Learning, and boost up your profile for more opportunities, as well as, all in all, the benefits of networking. So, with that said, ladies and gentlemen, let me introduce you to our guest speaker for today, Mr. Fahad Kadir, a business development manager representing a German multinational company called Phoenix Contact in Pakistan. He has a bachelor's in electronics engineering and an MBA in industrial marketing management from PF Keet, Karachi. He has a unique and versatile experience in a variety of roles for leading organizations that operate in diverse industrial sectors, um, including switchgear industry, oil and gas, power generation, industrial equipment. And he has been working with organizations like PEL, Jubilee Corporation, Advanced Electronic International, and eCreators. So, with that said, ladies and gentlemen, before we begin with the seminar, I request you to please leave any questions if you have on the chat box below, and we'll try to get back to them at the end of the seminar. So, with that said, and without a further ado, I'd like to invite Mr. Fahad to please begin with the overview of what you'll be enlightening our audience with today. So, I think over to you, Mr. Fahad. Thank you very much, Narmeen, for the brief introduction. And thank you very much for WIE NAST for inviting me for such a wonderful session. Uh, this Thank is you, not the sir, for first. joining. You are welcome, Narmeen. Uh, this is not the first time I am asking all the students, especially for engineering students, कि please be very active on the LinkedIn because हम आज बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे कि लिंक्डइन क्या है और सबके लिए क्यों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है लेकिन रेमिनिसिंग ऑलमोस्ट 2 years बैक सो मैं आपको वापस लेके जाना चाहता हूँ अप्रैल 2020 में जहाँ पे देयर वाज द इन्वेजन ऑफ कोविड और कोविड के आने के बाद द होल वर्ल्ड हैज़ बिकम चेंज्ड हम वो तमाम प्लेटफॉर्म्स जिनको हमेशा हमेशा फिजिकली यूटिलाइज करना चाहते थे दे हैव बीन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आई डोंट नो आप लोगों को इस बारे में पता है या नहीं पता बट इन जर्मनी और पोलैंड और जितने भी यूरोपियन कंट्रीज है यहाँ पे नाउ the physical exhibitions are being replaced by the online exhibitions moreover now you will be seeing a new thing which is very new for you as well but I know what's going on the background uh, हज भी वर्चुअल हो जाएंगे और उम्रे भी वर्चुअल हो जाएंगे द वर्किंग हैज बीन डन ठीक है तो ये सारी की सारी चीजें वर्चुअल ही होती चली जा रही हैं और होंगी सो जब जब ये सारी चीजें वर्चुअल होती चली जा रही हैं तो इसका इम्पैक्ट हर सेक्टर के ऊपर अपने करस्पॉन्डेंस के हिसाब से आता है सो दिस 2 years trend has put a lot of stress on the way we approach our jobs ठीक है it's all about how we present ourselves so पहले ये हुआ करता था कि रोजी पी के हुआ करता था बच्चे मुझे भी याद है अपने दौर में कि व्हेन आई यूज्ड टू बी अ स्टूडेंट तो रोजी पी के वाज द ओनली प्लेटफॉर्म जहाँ पे हम लोग जॉब्स के लिए अप्लाई किया करते थे या ऑब्वियसली जो कंपनीज की वेबसाइट्स होती थी जिनसे कभी भी रिस्पॉन्ड नहीं आता था वहाँ पे अप्लाई किया करते थे बट द ट्रेंड हैज नाउ बीन कंप्लीटली चेंज्ड अब आपकी कंप्लीट प्रोफाइल is based on the LinkedIn. Whatever you are and who you will be, LinkedIn will decide. So आज हम ये डिस्कस करेंगे कि सबसे पहली बात तो ये कि हमारा LinkedIn पे होना उतना ही ज़रूरी है जितना हमारा ये डिग्रीज करना ज़रूरी है आप सब इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं कुछ नहीं भी हैं लेकिन जितना आपका ये डिग्री करना ज़रूरी है उतना ही आपका इस डिग्री को LinkedIn के ऊपर प्रेजेंट करना ज़रूरी है ठीक है तो हम इसको आज देखेंगे कि लिंक्डइन के ऊपर किस तरह से वी हैव टू प्रेजेंट आवरसेल्फ हमारी प्रोफाइल लिंक्डइन पे किस तरह से होनी चाहिए लिंक्डइन के ऊपर खाली मौजूद होना डजंट मेक अ बिग डिफरेंस बट व्हाट यू हैव टू डू ऑन द लिंक्डइन टू गेट योरसेल्फ ऑन द मेन स्ट्रीम स्पॉटलाइट में आने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा राइट सो आज ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे एंड वी विल डू अ सॉर्ट ऑफ अ वर्कशॉप टुडे जिसके अंदर यू गाइस विल बी वॉलंटियरिंग योर नेम्स और मैं आप सबकी प्रोफाइल्स
को चेक भी करूंगा। ऑब्वियसली सबकी तो नहीं कर सकते, ऑलमोस्ट यहाँ पे 95 के करीब लोग मौजूद हैं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि ज़्यादातर बच्चों की प्रोफाइल्स चेक करके आप लोगों को मैं कमेंट कर दूं कि क्या क्या चीज़ें आप उसमें ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि एक अच्छी प्रोफाइल क्या होती है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से बच्चों की प्रोफाइल्स में क्या क्या चीज़ें और ऐड हो जाएं तो वो एक अच्छी प्रोफाइल बन जाएगी। थर्डली वी विल डिस्कस किस तरह की पोस्टिंग होनी चाहिए, जो सबसे क्रिटिकल है लिंक्डइन के अंदर, किस तरह की पोस्टिंग होनी चाहिए। बिकॉज आप देख रहे होंगे देयर इज अ पोस्ट जो कि एक आई विल शो यू, वन ऑफ माय स्टूडेंट इज आल्सो फ्रॉम नस्ट, वो WIE का पार्ट भी रही है, हर नेम इज हाजरा फारूक। वो एक पोस्ट करती है लिंक्डइन के ऊपर और उसी की कुलीग सेम पोस्ट करती है लिंक्डइन के ऊपर। हाजरा फारूक के आते हैं 1450 लाइक्स और उसकी कुलीग के आते हैं हार्डली 120 लाइक्स। नाउ व्हाट्स गोइंग ऑन, व्हाई इज इट सो? एक के 1500 लाइक्स आ रहे हैं, एक के 150 लाइक्स भी पूरे नहीं आ रहे हैं। हाजरा फारूक की रीच हो रही है 1 लाख यूजर्स तक, उस दूसरे कैंडिडेट की रीच हो रही है हार्डली 2000 लोगों तक। नाउ हियर कम्स द डिफरेंस, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि लिंक्डइन की जो कम्युनिटी है उसको पसंद क्या है, लिंक्डइन पे किस तरह के पोस्ट्स को पसंद किया जाता है और किस तरह के पोस्ट्स करने चाहिए और किस तरह के पोस्ट्स नहीं करने चाहिए, राइट? सो लिंक्डइन की प्रोफाइल आपको जॉब दिलाती है, लिंक्डइन की प्रोफाइल आपको जॉब स्विच करवाती है और लिंक्डइन की ही प्रोफाइल आपको वर्दी बनाती है, राइट? क्योंकि हम फिजिकली प्रेजेंट नहीं है इस वक्त पूरी कॉर्पोरेट वर्ल्ड के सामने, तो क्या चीज हमारी उनके सामने प्रेजेंटेबल है? इज आवर प्रोफाइल। सो हमारी प्रोफाइल उसी तरह उतनी ही प्रोफेशनली दिखनी चाहिए जैसा कि हम इंटरव्यू में जाके वर्कआउट करते, राइट? जो जितना अपने ऊपर हम जो है वो अपनी पर्सनालिटी के ऊपर वर्किंग करते हैं इंटरव्यूज में जाने के लिए, उतनी ही वर्किंग आपको अपनी इस वक्त लिंक्डइन की प्रोफाइल पे करनी है। यू गाइस वोंट बिलीव, बैक इन 2011 की बात है, इट्स ऑल अबाउट द एटीट्यूड्स बाय द वे। हम सबके जो एटीट्यूड्स है ना वो इस तरह के डेवलप हो चुके हैं, एक तो हम नई चीजें सीखना नहीं चाहते, राइट? और अगर कोई हमें सिखाने आता है तो हम वी मेक फन ऑफ देम, यार ये क्या है। बिल्कुल यही एटीट्यूड होता है जनरली, मेरा भी ऐसे ही था। बैक इन 2011 आई वाज वर्किंग इन अ कंपनी, एक सॉफ्टवेयर हाउस में काम कर रहा था और देयर वाज अ गर्ल फ्रॉम HR डिपार्टमेंट, वो शेल से आई थी वहां पे। शी सेड टू मी, फहद व्हाई यू डोंट मेक योर प्रॉपर लिंक्डइन प्रोफाइल। तो मैंने कहा यार लिंक्डइन की प्रोफाइल बना के क्या करना है, जॉब तो वैसे भी मैंने जो है वो रोजी पीके पे ही ढूंढनी है। सो एट दैट टाइम इमेजिन 2011 में उसने मुझे कहा कि द वर्ल्ड इज गोइंग टू चेंज एंड इट हैज स्टार्टेड टू चेंज। उसने कहा जी मोस्टली अच्छी जॉब्स लिंक्डइन के ऊपर ही आती हैं, टॉप रिक्रूटर्स, थर्ड पार्टी रिक्रूटर्स लिंक्डइन के ऊपर मौजूद होते हैं, वो लोगों को देख रहे होती है, उनकी एक्टिविटीज को देख रहे होते हैं और वहीं पे वो उनको ऑफर करते हैं। उसको तो मुझे समझ में नहीं आई, बट ये बात मुझे उसको समझ में आई जब मुझे एक जर्मन मल्टीनेशनल से लिंक्डइन के थ्रू ऑफर आई। एट दैट टाइम आई रियलाइज कि यस द लेडी वाज राइट, तमाम मल्टीनेशनल कंपनीज और बड़ी कंपनीज लिंक्डइन के थ्रू ही हायरिंग करती हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर जर्नी टुडे with the drive of how to make an excellent profile on the LinkedIn। ठीक है जी। सो मैं आप लोगों से अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, मुझे ये बताइए कि क्या आप लोगों को नजर आ रही है? जी सर, we can see your screen. Are you seeing my screen? Yes, we can see your screen. Narmeen, can you give me the feedback? Okay, आप मेरी LinkedIn प्रोफाइल देख सकते हैं। मेरे ख्याल में सिर्फ और सिर्फ नरमीन का ही माइक ओपन है, सो ऑल द टाइम आई वुड बी डिपेंडिंग ऑन नरमीन्स फीडबैक, राइट? इजंट इट? Yes. ओके, ठीक है जी। और चैट बॉक्स में क्या हमारे पास बच्चे क्वेश्चन लिख सकते हैं? I think लिख सकते हैं. Yes, they can write. ओके, ताहा हुसैन कह रहे हैं यस लिख सकते हैं। ओके ओके, वेरी गुड। सो साथ साथ आप लोग जो है वो इफ़ यू वांट, अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो तो वो इस चैट बॉक्स में लिखते रहिए। साथ साथ मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों के क्वेश्चंस के मैं आंसर भी देता चला जाऊं, राइट? सो लेट्स गेट स्टार्टेड।
लिंक्डइन प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑफ रिक्रूटमेंट। आज हम क्या क्या चीजें स्टडी करने जा रहे हैं। बाय द वे, आई एम नॉट अ टिपिकल टीचर, मैं कोई आप लोगों को स्लाइड दिखाने नहीं आया, बट हम आज डिस्कशन करेंगे। हम आज एक वर्कशॉप करेंगे जिसके अंदर प्रोफाइल्स देखी जाएंगी, और आप अपनी अपनी प्रोफाइल ऐसा कीजिएगा कि यहाँ चैट बॉक्स के अंदर अपनी प्रोफाइल्स के लिंक डाल दीजिएगा, और साथ साथ मैं आप लोगों की प्रोफाइल्स सबके साथ डिस्कस भी करता रहूंगा, और उसके अंदर मैं इम्प्रूवमेंट्स आपको बताता रहूंगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी की प्रोफाइल अप टू द मार्क बनी हुई है तो उसके अंदर ऑब्वियसली किसी इम्प्रूवमेंट की जरूरत नहीं है, राइट? सो लेट्स प्रोसीड। व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इज नॉट स्टडी, वी डिस्कस इज, आज हम देखेंगे कि ग्लोबल शिफ्ट जो लिंक्डइन की तरफ आ रहा है वो क्या है, ठीक है? करंट एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड्स क्या है? तो कि मैंने आपसे कहा जैसे कि लिंक्डइन पर बहुत ज्यादा फोकस हो रहा है। एक कॉम्पिटेंट प्रोफाइल लिंक्डइन पे बनाई कैसे जाती है, उसके डू एंड डोंट्स क्या हैं, राइट? और लिंक्डइन के ऊपर जॉब कैसे ढूंढनी है, एंड देन ऑफ कोर्स क्वेश्चनिंग आंसरिंग तो हर वक्त मेरे साथ आप लोगों की होती रहती है, ठीक है जी? सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसा कि मैंने आप लोगों से जिक्र किया कि कोविड की इन्वेजन के बाद दुनिया भर में, देखो एक बात याद रखना, वी ऑल आर लिविंग इन अ डायनामिक वर्ल्ड। दुनिया में हर चीज हर दिन के हिसाब से चेंज हो रही है। आज से कुछ अर्सा पहले भी नेवर एक्सेप्ट कि जी हम लोगों ने वैक्सीन लगवानी है, लेकिन आज सबने लगवानी है। आई कैन टेल यू कल क्या आ रहा है। जर्मनी के अंदर एवरीवन इज नाउ हैविंग द चिप्स, राइट? आज 3-4 साल बाद दुबई के अंदर भी लगवानी पड़ेंगी, और उसके कुछ अर्से आई एम सॉरी, थोड़ा सा नेटवर्क का इशू था। सो पाकिस्तान के अंदर भी हम कुछ अर्से बाद ये चिप्स लगवा रहे होंगे, राइट? सो वी आर लिविंग इन अ वेरी डायनामिक वर्ल्ड, जिसके अंदर ये चीजें वक्त के साथ साथ बदलती चली जा रही है। सो इफ यू सी कि 81 ये पोल होते हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रही होती है, उनसे पूछा गया कि टैलेंट प्रोफेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, पूछा गया कि 81% लोगों ने कहा कि वर्चुअल रिक्रूटमेंट होनी चाहिए। यानी कोई बंदा हायर करना है, बाय द वे मैं आपको बताता चलूं, हमारी कंपनी में भी जब भी कोई बंदा हायर करना होता है, उनकी कोशिश ये होती है कि वर्चुअल इंटरव्यू पहले कर लिया जाए, राइट? सो 81% लोगों ने कहा कि वर्चुअल इंटरव्यूज होने चाहिए। ओके फाइन, ये बात बिल्कुल ठीक है। उसके बाद 70% वर्चुअल स्टैंडर्ड ही बनना चाहिए, राइट? दिस इज हाउ द थिंग्स वर्क। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो 2020 में जिस कोविड शुरू हुआ, तो ये लिंक्डइन वालों ने स्टैट्स देना शुरू किए। 2020 के अंदर यू वोंट बिलीव, लिंक्डइन के ऊपर 6.128 मिलियन लोग पाकिस्तान से मौजूद थे। एक हफ्ता कोविड जैसे ही स्टार्ट हुआ, और यू वोंट बिलीव, अगर मैं आपको बताऊंगा, एज ऑफ टुडे दिस नंबर हैज मल्टीप्लाइड बाय 2। इस वक्त ये नंबर मल्टीप्लाई बाय 2 हो चुका है। इतने ज्यादा लोग लिंक्डइन में, अब थाउजेंड्स में तो बच्चे मैंने लिंक्डइन को लाके दिए। एक दफा लिंक्डइन वालों की मुझे कॉल भी आ गई थी, शुक्रिया की, कहने लगे सर थैंक यू वेरी मच फॉर गेटिंग सो मेनी स्टूडेंट्स। जब बच्चे भी टैग करते हैं ना, तो दे सी, लिंक्डइन वाले दे आर वेरी वेरी स्मार्ट, दे सी के कौन टैग हो रहा है, किस एक्टिविटी पे टैग हो रहा है, एंड दे सेंड यू अ लिंक्डइन मैसेज, ठीक है? सो अच्छा, अब अगली बात यह है कि लिंक्डइन के ऊपर
प्रोफाइल के अंदर क्या क्या चीजें मैटर करती हैं। अगर आप देखें लिंक्डइन पे किसी की भी प्रोफाइल, ओके हम लिंक्डइन से हट के बात करते हैं नाउ। आई आस्क अ क्वेश्चन फ्रॉम यू गाइस। ओके मेरे ख्याल में नरमीन से ही पूछते क्योंकि इनका माइक ओपन है, ये बता सकती हैं नरमीन। फॉर जी एग्जांपल जी। इफ यू आर अ रिक्रूटर, इफ यू आर अ रिक्रूटर, आप रूम आप रूम में होती है, बिफोर टॉकिंग फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू विल सी। Sorry आई sir, can you थिंक repeat your question? I शायद think नरमीन you're मेरा क्वेश्चन नहीं जी जी, समझ can you पाई है, मे बी शायद इंटरनेट। sir, I think your internet is a bit off ओके today. मेरे मेरा क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर दे तो, फॉर एग्जांपल नरमीन, you are in a situation, you are the hiring manager, ठीक है, और नरमीन के पास there is a female candidate who is coming for an interview। मेरा इंटरनेट सही नहीं चल रहा। ओके नहीं, सो it's fine, I can hear you. सिर्फ नरमीन के साथ ऐसा बात करिए सब। गिव योर फीडबैक, योर इंटरनेट इज लुकिंग ओके, माय इंटरनेट इज ओके, कुछ जरा बेहतर इंटरनेट आ जाए। ओके Sir, but I heard your question till the point where ओके you said, I am the hiring manager of a company. ओके मैं समझा। ओके फाइन। तो नरमीन अगर किसी भी कंपनी की मैनेजर होगी, हायरिंग मैनेजर होगी, और सामने से भी कैंडिडेट आएगा, तो सबसे पहले व्हाट नरमीन विल सी इज हाउ द पर्सन लुक्स The लाइक। profile. ठीक है, Yeah, सबसे how पहली the चीज जो हम person looks देखते like. हैं कि हाउ द पर्सन, और द पर्सन कुड बी फीमेल, हाउ पर्सन डज लुक लाइक इंपॉर्टेंट पिक्चर। ठीक है, जितनी प्रोफेशनल आपकी प्रोफाइल पिक्चर होगी उतना अच्छा इम्पैक्ट आपका पड़ेगा, राइट? Yeah, तो सबसे अच्छी totally. चीज हमें बनानी, वो बनानी है प्रोफाइल पिक्चर। ओके फाइन। उसके साथ साथ जितने भी लिंक्डइन के अंदर ग्रुप्स हैं, जितनी भी कन्वर्सेशंस लिंक्डइन के ऊपर हो रही होती है, उसके अंदर यू हैव टू पार्टिसिपेट। प्लस लिंक्डइन कहता है आउट ऑफ एवरी 3 प्रोफेशनल्स देयर इज वन फ्रॉम द एचआर डिपार्टमेंट, राइट? इज 41% जो लिंक्डइन की जो विजिबिलिटी है दैट इज फ्रॉम द मोबाइल, यानी कि लिंक्डइन के ऊपर 41% मोबाइल यूजर्स आपके मौजूद हैं। 41% लोग मोबाइल से लिंक्डइन को देख रहे होते हैं, राइट? सो नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट कि बिल्डिंग अ प्रोफाइल। मेरी आवाज ऑडिबल है सबको? Ji sir, I can hear आवाज you. Yeah, क्लियर? yeah, I can hear you. परफेक्ट परफेक्ट। जहां पे मेरी आवाज लैग हो प्लीज मुझे बता दीजिएगा। ओके नाउ किरण टू पिक अ प्रोफेशनल पिक्चर। यस, मैं भी आगे चल के आप सबको बताता हूँ कि आपने प्रोफेशनल पिक्चर आपने बनानी किस तरह से है। और बहुत सारे बच्चों ने अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल्स यहाँ पे शेयर की हैं, उन सब की प्रोफाइल्स हम देखेंगे। उससे आपको खुद आइडिया कि कौन कौन सी प्रोफाइल की पिक्चर्स, कौन कौन सी प्रोफाइल की डिस्क्रिप्शन, मैं बहुत सारे अपने स्टूडेंट्स की प्रोफाइल्स आपको दिखाऊंगा। ओके, building a profile, you can see there is a journey from minus, यानी कि मिनिमम से जर्नी है। ऑब्वियसली बहुत सारे बच्चे आपके यहाँ ऐसे होंगे अभी हमारे पास जिनकी प्रोफाइल या तो नहीं बनी होगी, कोई बात नहीं, अगर नहीं बनी तो प्रोफाइल बना लेनी है हमने, और अगर प्रोफाइल बनी तो उसको मैक्सिमम लेवल पे ले जाके उसको ऑप्टिमाइज करना है। ठीक है, दिस इज द टास्क विच वी हैव टू डू। कैसे होगा? सबसे पहले जो चीज होनी है वो होनी है प्रोफाइल पिक्चर। प्रोफाइल पिक्चर कैसी होनी चाहिए? आप टेक अ लुक। लिंक्डइन कहता है कि प्रोफाइल पिक्चर ऐसी होनी चाहिए, फेस के ऊपर क्लोजअप होना चाहिए, राइट? कैमरा स्माइल ऑन द फेस विद अ न्यूट्रल बैकग्राउंड। ठीक है, ऐसी प्रोफाइल पिक्चर होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू लिंक्डइन। अब हम लोग कैसी लगाते हैं पिक्चर्स, ये भी हम जरा डिस्कस कर लेते हैं।
कौन किस तरह की प्रोफाइल पिक्चर्स नहीं होनी चाहिए? टेक लोग गाड़ी में बैठे हैं, ग्लासेस लगा के सेल्फी ले ली, नो, ऐसी पिक्चर नहीं होनी चाहिए। कुछ ड्रिंक पी रहे हैं, पिक्चर लगा ली, नो। ड्राइव करते वक्त कोई पिक्चर, नो। सिगरेट पीते वक्त कोई पिक्चर, या कोई अपनी पर्सनल एक्टिविटी करते वक्त इस तरह की किसी किस्म की पिक्चर्स लिंक्डइन के ऊपर आपको नहीं लगानी है, राइट? इफ यू वांट टू हैव अ सर्टिफिकेट और एक सर्टिफाइड पिक्चर, देयर इज अ वेबसाइट कॉल्ड photofiller.com। इस वेबसाइट पे आप जाएं, ये आपकी प्रोफाइल की पिक्चर की रेटिंग बताती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप साइट पे जाते हैं तो देयर इज अ पिक्चर, एक साहब है, उन्होंने एक पिक्चर लगाई उसके ऊपर photofiller.com पे। अब वो क्या बता रही है? वो कहती है कि 88% कॉम्पिटेंट है आपकी पिक्चर, ओके गुड। लाइकेबिलिटी उसकी 47% है, और इन्फ्लुएंशियल है वो पिक्चर, फाइन, दिस इज गुड। अच्छा, अब यही पिक्चर इन्होंने थोड़ी सी चेंज कर दी, ठीक है? पिक्चर जैसी इन्होंने चेंज की, कॉम्पिटेंसी अचानक से गिर गई, लाइकेबिलिटी बढ़ गई, और इन्फ्लुएंशियलनेस भी कम हो गई। तो ये दो फैक्टर हमारे लिए, कॉम्पिटेंसी और इन्फ्लुएंशियल फैक्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। सो आपकी पिक्चर अगेन देन अगेन क्या होनी चाहिए? कुछ इस तरह की होनी चाहिए, राइट? अब हम चल के देखेंगे, बहुत सारे बच्चों ने बहुत सारी मुख्तलिफ तरह की पिक्चर लगाई हुई हैं। ओके, उसके बाद आती है प्रोफाइल की हेडलाइन। अच्छा, प्रोफाइल की हेडलाइन आती है, और उसके बाद फिर आता है उसका कवर पेज किस तरह की होनी चाहिए, ये सारी चीजें भी हम डिस्कस करेंगे। सो हेडलाइन के अंदर आपकी आती है जॉब, जॉब टाइटल में कंपनी नेम, कीवर्ड्स एंड जिंक फैक्टर। 90% लोगों का, ठीक है, जिंक फैक्टर इज द कॉल टू एक्शन थिंग। जैसे हम कहते हैं ना कि यार कॉल टू एक्शन क्या है इस बंदे का, जिंक फैक्टर इज द कॉल टू एक्शन। क्या है, चल के डिस्कस करते हैं हम। जिंक फैक्टर का सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है, जिंक फैक्टर हमारा डिफाइन ही होता है, और विच इज व्हाट वी कॉल कॉल टू एक्शन। ये कैसे होगा, अभी हम आगे चल के इसको डिस्कस करते हैं। सो बट बिफोर डिस्कसिंग द जिंक फैक्टर, नाउ आई वुड लाइक टू शो यू सम प्रोफाइल्स। ओके, इनकी प्रोफाइल देखते हैं। ये जिन साहब की हम पिक्चर पहले देख रहे थे, ये इनकी पिक्चर हुई। बैक साइड पे जो है दैट इज कॉल्ड कवर पिक्चर। उसके बाद नाउ यू विल स्टार्ट डिफाइनिंग योरसेल्फ। सो ये कौन साहब है? ही इज अ कम्युनिकेशन ट्रेनर। उसके बराबर में ये कॉमा डाल के लिखते हैं कोच एंड पार्टनर एट एक्सपर्ट एकेडमी, ओके फाइन। उसके बाद डैश डाल के लिख रहे हैं ये हेल्पिंग पीपल इन देयर प्रोफेशनल ग्रोथ। दिस इज कॉल्ड जिंक फैक्टर, और यही आपका कॉल टू एक्शन होता है, जो कि आपके रिक्रूटर्स को बताता है कि व्हाट यू आर हेडिंग टू और व्हाट यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जिंक फैक्टर। आगे चलते हैं जी। नाउ लुक एट दिस प्रोफाइल ऑफ अ लेडी, जिन्होंने अपनी प्रोफाइल के बारे में लिखा है एक्सपीरियंस्ड B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस इनबाउंड सेल्स प्रोफेशनल। ओके, यहां इन्होंने अपने बारे में डिफाइन कर दिया, वेरी गुड। फिर आगे कह रही है Excuse me, क्रिएटिव sir. एंड अडेप्ट। जी, Yeah. I think your presentation is stuck. रियली? Yeah. Okay. Now I can see sir. Levin Benz. And now, yeah, Samantha यस, Mangwit. Now it's working. या ठीक है Okay. जी, आप Sorry. सबको Go on. नजर आ रही है? जी, I think अब सबको आ रही है. Yeah, अगर तुम्हारा इस essence, तरह की yes. कोई चीज हो तो प्लीज मुझे जरूर बताइएगा, सो दैट मैं वहीं पे रुक जाऊं। सो आपको सबको ये नजर आ रही है खातून, जो कि एक एक्सपीरियंस प्रोफेशनल है, और एंड में अगर आप देखें तो व्हाट शी इज राइटिंग इज सीकिंग अपॉर्चुनिटीज इन मार्केटिंग, ओके फाइन। उसके आगे इन्होंने अपना सिटी डिफाइन कर दिया, ऑल्दो शी इज फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स। लेट्स प्रोसीड टुवर्ड द अनदर प्रोफाइल, मैगन मैकडोनल्ड। ओके फाइन, बहुत अच्छी पिक्चर इसने लगाई है मैगन ने भी। और इनकी कवर पिक्चर, अच्छा कवर पिक्चर को मैं आपको बताता चलूं कवर पिक्चर के बारे में। कवर पिक्चर शुड रिफ्लेक्ट व्हाट यू आर डूइंग, ठीक है? शी इज अ रीसेंट ग्रेजुएट ऑफ टेम्पल यूनिवर्सिटी, ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी ये करती है। उसके बाद ये लिख रही है ओपन टू वर्क, रिसर्च असिस्टेंट, ओके, विक्टिम एडवोकेट और केस वर्कर, ब्ला ब्ला ब्ला। सो यहां पे आप डिफाइन करते हैं कि व्हाट यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू अदर देन योर जिंक फैक्टर, ठीक है? यहां पे आप अपने जॉब रोल्स डिफाइन करते हैं। आई एम श्योर अभी तक किसी ने नहीं किए होंगे, बट कोई मसला नहीं है। आगे देखते हैं जी विल हम्बर को।
विल हबर कहते हैं कि जी एस्पायरिंग बिजनेस लीडर, ओके फाइन, इन्वेस्टर, फाइनेंस एंड रियल स्टेट मेजर, ग्रेजुएटिंग इन 2023, विच इज परफेक्टली फाइन। ठीक है जी, क्योंकि ये रियल स्टेट से इनका ताल्लुक है तो उन्होंने पीछे पिक्चर भी कुछ इसी तरह की लगाई है। फाइन। नाउ आई एम गोइंग टू शो यू सम प्रोफाइल ऑफ माई स्टूडेंट्स। ठीक है, किस तरह की होती है और किस तरह की होनी चाहिए आप लोगों की प्रोफाइल। सो व्हाट आई एम डूइंग इज मैं प्रेजेंटेशन को स्टॉप कर रहा हूँ और नाउ आई एम गोइंग टू शेयर अ लिंक विथ यू, जो कि ओके, कैन आई शेयर लाइक मैं अपना कोई पेज शेयर कर सकता हूँ, लाइक अ वेबसाइट ऑन दिस? Yes, sir. I think you have to share the link, maybe. Yeah. लिंक नहीं नहीं नहीं, मैं अच्छा अगर मैं अपनी स्क्रीन वो आपसे शेयर करूं तो स्क्रीन फिर वो शेयर आएगा? करके आप वो खोल लें, हो जाएगा, इट Okay. विल वर्क। जी, screen share में। स्क्रीन शेयर करके अब आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? जी। ओके फाइन। अपनी प्रोफाइल से स्टार्ट करता हूं मैं, ठीक है जी। सो लिंक्डइन को क्या हो गया भाई? समथिंग वेंट रॉन्ग विद लिंक्डइन। I'll tell you how to make a good profile. Okay. So मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स की प्रोफाइल हैं जिन बच्चों ने अपनी प्रोफाइल्स बनाई थी ड्यूरिंग द इंटर्नशिप। आपको जैसे मैंने शायद आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे इंटर्नशिप के स्टूडेंट्स भी हैं और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो कि इंटर्नशिप नहीं कर रहे, कुछ न्यू स्टूडेंट्स भी हैं। तो जितने भी बच्चे जिपको इंटरनेशनल के पास इंटर्नशिप के लिए आते हैं, सबसे पहला काम ये होता है कि उनकी लिंक्डइन की प्रोफाइल्स मैं ठीक करवाता हूँ। ठीक है, तो ये कुछ बच्चे जिनकी मैंने लिंक्डइन की प्रोफाइल्स जो थी वो मैंने ठीक करवाई थी। सो इफ यू सी ताहा मेमन, आपको इस बच्चे की प्रोफाइल नजर आ रही है ताहा मेमन की? जी, we can see it. ओके, अब मैं ज़रा थोड़ा इसको जूम इन करता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा और आसानी से नजर आ जाए। कैन यू सी इट नाउ? जी, अब बताइए जरा, क्लियर है? यस सर, इट्स क्लियर। जी सर, it's clear. ठीक है। सो अगर आप ये देखें, सो ये अपनी प्रोफाइल में लिखते क्या है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आगे कॉमा 23। इस बात का मतलब ये है कि 2023 के अंदर ही इज गोइंग टू बी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। फाइन। उसके बाद इन्होंने सेपरेशन की, आगे लिखते हैं मेंबर IEEE म्यूट। ओके, अगर आप किसी सोसाइटी का पार्ट हैं तो आप यहाँ अपनी सोसाइटी की डेजिग्नेशन या उसके बारे में जरूर लिखें, बिकॉज एक चीज जहन में रखिएगा कि जितने भी बच्चे सोसाइटीज में काम कर रहे होते हैं, रिक्रूटिंग एजेंसीज और ऑर्गेनाइजेशंस उनको प्रेफर करते हैं हायर करने के लिए। ठीक है, तो अगर आप लोग किसी सोसाइटी का पार्ट नहीं है तो प्लीज कोशिश कीजिए किसी न किसी सोसाइटी का पार्ट जरूर बनिए, क्योंकि आपकी सीवी के ऊपर या आपके रिज्यूमे के ऊपर इट वर्ड्स अलॉट, राइट। उसके बाद इसने जिमको इंटरनेशनल में इंटर्नशिप की। ओके, इंडस्ट्री 4.0 एंथुसिस्ट। एंड में इसने अपना जिंक फैक्टर डिफाइन किया, कह रहा है रेडी फॉर ग्रोथ चैलेंजेस इन द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिकल। साउंड्स गुड, ठीक है। उसके बाद फौरी तौर पे जब आप नीचे आते हैं तो दिस इज समथिंग विच वी कॉल्ड हैशटैग्स। यू हैव टू डिफाइन प्रॉपरली योर हैशटैग्स, क्योंकि हैशटैग्स के ऊपर आपकी प्रोफाइल सर्च होती है। तो जिन जिन अच्छा हैशटैग्स कौन से होते हैं? हैशटैग्स वो होते हैं जिन एरियाज के अंदर आप जॉब करने में इंटरेस्टेड होते हैं या आप उन सर्टेन चीजों के ऊपर चाहते हैं कि आपकी प्रोफाइल सामने आए, राइट। सो यहां पे अगर आप देखें तो ये अपने हैशटैग्स अपने हिसाब से आपने डिफाइन करने, तो ये क्या डिफाइन करें? हाइड्रो पावर। अच्छा, यू कैन डिफाइन ओनली 5 हैशटैग्स, ठीक है, 5 हैशटैग्स आप डिफाइन कर सकते हैं। सो हाइड्रो पावर, career guide, industry 4.0, electrical design and power electronics are the hashtags which this guy is looking for. Okay, good enough, क्योंकि अपने हिसाब से उसने hashtags अपने डिफाइन कर दिए।
उसके बाद अगर आप देखें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो है नीचे आपके फॉलोअर्स और कनेक्शंस। लिंक्डइन का प्रॉब्लम ये है कि लिंक्डइन कहता है कि एक हफ्ते में 100 से ज्यादा कनेक्शंस मैं आपको नहीं बनाने दूंगा। ठीक है, तो जब आप एक हफ्ते के अंदर 100 रिक्वेस्ट भेज देते हैं, कनेक्शन रिक्वेस्ट, तो लिंक्डइन कहता है कि बस अब अगले हफ्ते ट्राई करना। ठीक है, तो आप क्या कर रहे होते हैं कि यू स्टार्ट इंक्रीजिंग योर फॉलोअर्स। इन अदर वर्ड्स, आप जाके लोगों को फॉलो करना शुरू कर देते हैं। इट्स गुड टू फॉलो पीपल, बट इट्स बेटर टू गेट देम कनेक्टेड, बिकॉज जब आप उनको फॉलो करते हैं तो आप सिर्फ उनकी न्यूज फीड देख सकते हैं, लेकिन जब आप उनको कनेक्ट करते हैं तो आप उनके साथ मैसेजेस एक्सचेंज कर सकते हैं। तो कोशिश करें कि फॉलो ना हो, कनेक्शन आए। अच्छा, आजकल एक और काम ये हो रहा है लिंक्डइन, जैसे ही आप किसी की प्रोफाइल, किसी ऐसे बंदे की जिसको आप नहीं जानते, प्रोफाइल देखते हैं, तो लिंक्डइन कहता है आप इसको फॉलो कर लो। आपने उसको फॉलो नहीं करना, बराबर में ही मोर का एक बटन लगा हुआ, उसको क्लिक करना है और उसके अंदर 5-6 ऑप्शंस आएंगे, जिसके अंदर एक ऑप्शन आएगा कनेक्ट का। आपने जाके उसको कनेक्ट करना है। कोशिश करें लोगों को फॉलो ना करें, ठीक है, क्योंकि ये बैलेंस आपको दोनों का सामने दिखा रहा होता है। उसके बाद ओके फाइन, दिस इज द प्रोफाइल। इन्होंने अपनी प्रोफाइल का इंट्रोडक्शन दिया। इसके बाद नीचे एक प्रोफाइल समरी भी होती है, जो कि आगे कुछ बच्चों ने डाली हुई, मैं आपको दिखाऊंगा। अच्छा, यहाँ एक्सपीरियंस के अंदर जब भी आप अपना कोई भी एक्सपीरियंस डालें, प्लीज ऑलवेज ऐड दिस बैच ऑफ लिंक्डइन। इसकी बड़ी वर्थ होती है, ठीक है। तो इसने दोनों अपनी इंटर्नशिप क्योंकि लिंक्डइन के थ्रू की थी, दैट्स व्हाई ही हैज एडेड द बैच ऑफ लिंक्डइन। ठीक है, तो आप लोगों ने भी प्लीज अपनी नई पोजीशन जो भी आप डालेंगे उसके अंदर लिंक्डइन का बैच जरूर ऐड कीजिएगा। आगे चलते, ओके, नाउ हियर इज अनदर प्रोफाइल इन फ्रंट ऑफ यू। ये भी ही इज आल्सो फ्रॉम इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। नाउ लेट्स सी इस प्रोफाइल। ये क्या कहते हैं जी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, क्योंकि ये पास आउट हो गया बच्चा तो इसने अपने नाम के आगे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर लिख दिया। फिर आगे लिख रहा है पावर सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम, ईवी चार्जिंग, जो कि अभी एक नई टेक्नोलॉजी है, पाकिस्तान में आ रही है। इंडस्ट्री 4.0 ऑटोमेशन, एक्स IEEE पेस म्यूट जर्नल सेक्रेटरी, फाइन, inspiring transformational leader, ready to take challenges in electrical and automation field. Okay, नीचे इसने अपने hashtags डिफाइन कर दिए। Another profile in front of you. अच्छा जी, अब आप एक चीज देख रहे होंगे दोनों प्रोफाइल्स के अंदर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है तो फिर कवर पिक्चर भी वैसी ही लगाई हुई है। अगेन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है तो कवर पिक्चर वैसी लगाई हुई है। ही इज ऑल्सो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, तस्वीर वैसी ही पीछे लगाई हुई है, ठीक है। whoever you are and whatever you want to write it in a very proper way. Now for girls, this is very important. This is one of my student कोमल लोहाना। मैं आपको ये कहानी सुनाने जा रहा हूँ इस बच्ची की। इसकी प्रोफाइल पिक्चर जो है वो एग्जैक्टली वैसी ही है जैसी लिंक्डइन कहता है। अच्छा, ऐसा क्यों है ये, इसके पीछे एक स्टोरी है। अगर आप देखें तो शी इज अ यू ग्रेड स्टूडेंट। ये अमेरिका गई थी और पाकिस्तान वाला तो वहाँ पे हाल है नहीं। यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर भी जो टॉप क्लास यूनिवर्सिटीज़ हैं, चाहे वो बड़े बड़े नाम हैं, लेकिन वहाँ पे भी बच्चों की लिंक्डइन की प्रोफाइल के ऊपर किसी को नहीं बताया जाता कि आपने कैसी बनानी है, राइट। लेकिन अगर आप यूएस में चले जाएं तो वहां पे छोटी से छोटी यूनिवर्सिटी के अंदर भी लिंक्डइन का एक अलग डिपार्टमेंट बना हुआ है, जहां पे आपकी पिक्चर उस तरह से क्लिक की जाती है जिस तरह से लिंक्डइन के ऊपर होनी चाहिए। ओके, सो ये बच्ची जब गई अमेरिका तो वहां पे लिंक्डइन का जो उस यूनिवर्सिटी के अंदर डिपार्टमेंट था, उन्होंने इसकी उस तरह से पिक्चर ली और लगाई। इसकी लिंक्डइन की प्रोफाइल उन्होंने बैठ के बनाई। बाद में जब ये मेरे पास आई तो ऑब्वियसली प्रोफाइल इसकी मैंने अपने तरीके से डेवलप करवाई। बट फॉर गर्ल्स, अगर आपको फैमिली या कल्चरल किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लीज यूज सच काइंड ऑफ पिक्चर्स। इस तरह की पिक्चर्स आपकी होनी चाहिए विद अ न्यूट्रल बैकग्राउंड, आईज इन द कैमरा, स्माइल ऑन द फेस, और इतना ही चेहरा आना चाहिए, राइट। आपको बहुत सारे बच्चों और बच्चियों की प्रोफाइल पिक्चर नजर आएंगी जिसके अंदर वो गाड़ियों में बैठे हैं, वो यूनिवर्सिटी में किसी फंक्शन में बैठे हुए हैं,
मतलब आई मीन 3 लड़कियां एक साथ खड़ी हैं, 4 लड़के एक साथ खड़े हुए। प्लीज बच्चों इस किस्म की बिल्कुल भी पिक्चर्स नहीं लगानी। देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड लिंक्डइन। लिंक्डइन को लिंक्डइन की तरह से लेके चलना है, लिंक्डइन को फेसबुक या इंस्टा की तरह नहीं लेके चलना। क्योंकि अगर आपने लिंक्डइन को फेसबुक या इंस्टा की तरह आप अगर लेके चले ना तो काम खराब हो जाएगा। नोबडी लाइक्स सेल्फीज ऑन द लिंक्डइन। ये अलग बात है, कोई आपको बताएगा भी नहीं, लेकिन किसी को पसंद भी नहीं होती। ठीक है, आगे चलते। सो शी इज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग स्टूडेंट। प्रॉपरली इसने अपनी प्रोफाइल में सारी चीजें उसी तरह से डिफाइन की हैं जिस तरह से होनी चाहिए। ओके, नाउ दिस गाय शानोद। आई होप कि अब इसकी पिक्चर आपको क्लियर नजर आ रही होगी। अगेन देन अगेन कवर पिक्चर को देखते हुए अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये क्या है। ठीक है, अगेन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, पावर, इलेक्ट्रिकल व्हीकल, eager to take new challenge in the field of electrical engineering. So what is this? Zinc factor. ठीक है जी, 500 प्लस कनेक्शंस, 1233 फॉलोअर्स, which is good. Okay, coming up to the next area which is profile summary. प्रोफाइल की समरी कैसी होनी चाहिए? देखो, प्रोफाइल की समरी या सीवी का ऑब्जेक्टिव एक जैसा होना चाहिए। हमें सीवी नहीं चले आप, क्योंकि अभी प्रोफेशनल नहीं है। रिज्यूमे, रिज्यूमे के ऑब्जेक्टिव में लंबी लंबी कहानियां डालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव आपका डिफाइन करता है कि आप क्या है और क्या करना चाहते हैं, दैट्स इट, इससे ज्यादा नहीं। समरी के अंदर भी देयर आर अ लॉट, देखो यू कैन डू अ लॉट, बट द बेस्ट थिंग इज हमेशा कोशिश करनी है ट्राई टू डू समथिंग डिफरेंट। लोग हमेशा अपनी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करते ताकि टेक्स्ट कम से कम हो और विजुअल ज्यादा हो। जो बच्चे मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से ये पता है कि मैं कभी भी बल्कि स्लाइड्स दिखाने के फेवर में नहीं होता। मेरी जितनी भी स्लाइड्स हैं उनके अंदर आपको 80 to 90% विजुअल नजर आएंगे और सिर्फ 10% आपको हेडिंग्स नजर आएंगी। दिस इज द वे प्रेजेंटेशन होनी चाहिए। ठीक है, इसी तरह से यू हैव टू प्रेजेंट योरसेल्फ इन अ पिक्टोरियल वे। कैसे? नाउ टेक अ लुक, ये देखो अबाउट में, वो बंदा अबाउट में गया है और जाके कह रहा है माय पैशन इज टू हेल्प अदर हैव मोर सक्सेस इन बिजनेस थ्रू प्रोफेशनल कम्युनिकेशन। फाइन, ओके, अब इसने क्या किया, इसने अपनी एक छोटी सी प्रेजेंटेशन बना के डाल दी। ठीक है, अगर किसी को बहुत ज्यादा मेरे बारे में जानने का शौक हो रहा है तो मेरी प्रेजेंटेशन देख ले। इसने अपनी 2 प्रेजेंटेशंस अबाउट में जाके लगा दी हैं। अगर आपको मेरे बारे में जानने का बहुत ज्यादा शौक हो रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन मुझे राइटअप लिखने का शौक नहीं है, तो जाके अबाउट में मेरी प्रेजेंटेशन देख ले। सो दिस इज द वे इट शुड बी। ओके, मूविंग फर्दर, शी इज ऑल्सो वन ऑफ माई स्टूडेंट। अगेन ये भी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की स्टूडेंट है। अपनी प्रोफाइल बनाने के बाद, अपने प्रॉपरली हैशटैग्स डिफाइन करने के बाद और प्रॉपरली अपनी समरी डिफाइन करने के बाद आप नीचे अपने कोर्सेस, अपनी सोसाइटीज और जो जो भी आप चीजें करें, अच्छा यू कैन ऑल्सो अपलोड योर पिक्चर्स एज वेल एज योर सर्टिफिकेट्स, व्हाई नॉट। आप अपनी पिक्चर्स और सर्टिफिकेट्स लाजमी लिंक्डइन के ऊपर लगाइए, लाजमी, दिस इज मस्ट टू डू। ओके, और लकीली आई वांट टू टेल यू समथिंग कि आई जस्ट ओपन माय लिंक्डइन एंड इट्स वर्किंग। सो दोबारा कोशिश करते हैं कि आप लोगों को मेरी लिंक्डइन की स्क्रीन नजर आ जाए। ओके, सो आर यू रेडी? जी, वी आर रेडी। यस सर। ओके, ओनली नरमीन इज रेडी है, बाकी सारे बच्चे बिल्कुल खामोश बैठे हुए हैं। प्लीज कैन यू राइट अ मैसेज? सारे सो तो नहीं रहे कहीं? Yes. So sir, we can hear you actually. Okay, good.
रेडी। ओके बच्चों, मेरे साथ साथ मोबाइल भी कनेक्टेड है, तो मोबाइल के ऊपर भी मेरे साथ साथ जो है ना मैसेजेस आना शुरू हो गए, और अनफॉर्चुनेटली साइलेंट नहीं हो रहा। बच्चों बस कर दो। ओके, आई नो यू आर रेडी। नाउ व्हाट आई हैव टू डू इज, ओके, टर्न इट ऑन द साइलेंट मोड। हो गया। अच्छा जी, अब आपको मुझे दिखानी है अपनी विंडो विच इज द लिंक्डइन। No, was not that. Going back again. Stop. Share 6 windows. My feed. ओके, मेरी प्रोफाइल नजर आ रही है? आ रही है भाई सबको जी, नजर? we can see the ओके, profile. यू कैन सी द प्रोफाइल, वेरी गुड। सो सबसे पहले चल के किसकी प्रोफाइल देखते हैं? अच्छा, हाजरा फारूक की प्रोफाइल देखते हैं। हाजरा फारूक की प्रोफाइल क्यों दिखा रहा हूँ, उसकी वजह यह है कि माशाल्लाह 9 hours ago she has posting something new and she has got 248 likes. You know, she loves posting. इसको बहुत ज्यादा पोस्टिंग करने का शौक है। शी लव टू बी ऑन द लाइमलाइट ऑफ द लिंक्डइन। नाउ लुक एट हर प्रोफाइल। मोहतरमा ने रैकेट्स एंड बिनकाइजर ज्वाइन की है, और ये नस्ट की ही स्टूडेंट है, और ये जो सोसाइटी जिसने मुझे आज इनवाइट किया है, मेरे ख्याल में सोसाइटी में भी ये रही है, मुझे एक दफ़ा इसने बताया था। सो आप देखें तो इसने, इसको अपनी कंपनी से बहुत मोहब्बत है, तो इसने अपनी कवर पिक्चर कुछ उस तरह की लगाई है। यू कैन सी हर प्रोफाइल पिक्चर वैसी है जैसी मैंने कही। प्रोक्योरमेंट एग्जीक्यूटिव एट रैकेट्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इंडस्ट्री 4.0, एम्बेडेड सिस्टम, पीएलसी नेक्स्ट, पावर सिस्टम, कंप्यूटर एंड ब्ला ब्ला ब्ला। ओके, थोड़ा सा अगर हम नीचे आए इसकी प्रोफाइल में देखें तो टेक अ लुक। आपको फीचर्ड में जितनी फ्लडेड प्रोफाइल हाजरा फारूक की नजर आती है, बहुत कम बच्चे ऐसे हैं जिनकी नजर आती है, राइट? सो व्हेन शी ज्वाइंड रैकेट्स एंड बिनकाइजर, पहला पोस्ट इसने लगाया कि जी आई एम रिलेटेड टू अनाउंस आई हैव ज्वाइंड रैकेट्स। ओके फाइन। कुछ अरसे बाद व्हाट शी इज सेइंग इज मीट माय फैमिली एट रैकेट्स। ओके, अच्छा, वन मोर थिंग, प्लीज ऑलवेज ऑन लिंक्डइन गिव क्रेडिट टू योर टीम। चाहे आप किसी सोसाइटी के हैं, चाहे आपने कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करा है, हमेशा एक अच्छी अपनी टीम के साथ पिक्चर लगाएं, लिंक्डइन पे पोस्ट करें और उनको टैग करें। पूरी दुनिया आपको देखेगी और अप्रिशिएट करेगी, जस्ट लाइक लोगों ने हाजरा को अप्रिशिएट किया। मीट माय फैमिली एट रैकेट कहने को एक बड़ा सिंपल सा पोस्ट है, लेकिन लिंक्डइन की कम्युनिटी इस चीज को पसंद करती है कि आप अपनी कंपनी को और अपनी टीम बिल्डिंग जो एक्टिविटीज है उनको दिखाते हैं। लेकिन यू ऑल्सो सी कि इस इंटर्नशिप को करने से पहले हाजरा ने काफ़ी सारे पोस्ट किए, लेकिन उन पोस्ट के ऊपर हमें कहीं लाइक नज़र नहीं आते। क्यों नहीं आते? आई कैन नॉट से एनीथिंग। सो दिस वाज द पोस्ट आई वाज टॉकिंग अबाउट, कि ये इस बच्ची ने पोस्ट किया, हैप्पी न्यू ईयर टू माय ग्रेट लिंक्डइन फैमिली, और जब ये पोस्ट करती है तो सब किसी न किसी जगह पे मुझे टैग भी कर देती है एज अ वोट ऑफ थैंक्स। सो अगर आप देखें तो इनको गिफ्ट्स मिले इनकी कंपनी की तरफ से, और उसके बाद 1473 लाइक्स, ओके, एंड 102 कमेंट्स। सेम इसी तरह का पोस्ट इसकी एक दोस्त ने भी किया था। आई डोंट नो हर नेम, मुझे उसका नाम याद नहीं है। अगर हाजरा यहाँ मौजूद है तो बता सकती है, आई कैन शो यू हर प्रोफाइल एज वेल। हार्डली 100-150 लाइक्स। इंपॉर्टेंट इज कि आप क्या पोस्ट कर रहे हो और कैसे पोस्ट कर रहे हो और क्या मैसेज दे रहे हो अपनी लिंक्डइन फैमिली को। नीचे आते नाउ, एक्सपीरियंस में अपना लगा दिया इसने, ओके गुड। नीचे जिनको इंटर्न का लगाया, मैंने आपको हमेशा बताया कि बैज लगाना बहुत ज़रूरी है, और ये इसने यहाँ पे अच्छा, अब ऑब्वियसली यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ WIE नस्ट PNEC चैप्टर के स्टूडेंट्स नहीं होंगे, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के बच्चे, और वो डिफरेंट सोसाइटीज का पार्ट होंगे। आप प्लीज अपनी सोसाइटी की यहाँ पे डेजिग्नेशन लगाएं, उसके बाद उसमें आपने जो जो काम किए उन सब की चीजें यहाँ पे लगाएं। दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, ठीक है? फिर नीचे इसके 3 और एक्सपीरियंसेस आ रहे हैं। मेंबर रजिस्ट्रेशन, अच्छा, इफ यू सी
रिक्रूटर्स इस चीज को बहुत पसंद करते हैं कि आपने सोशल एक्टिविटीज का बहुत ज्यादा आप पार्ट रहे हैं। आप देखिए TCF फाउंडेशन में भी ये रही, टीचिंग असिस्टेंट, और काफी सारी सोशल एक्टिविटीज में रही। एक चीज जो मैं आपको बताना चाहता था, जो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, रिकमेंडेशंस रिसीव्ड एंड गिवन। इनको 6 रिकमेंडेशंस मिल चुकी है और इन्होंने 7 रिकमेंडेशंस आगे लोगों को दी भी है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है आपकी प्रोफाइल पे अगर आपको प्रोफेशनल लोग रिकमेंड करें। नाउ फॉर एग्जांपल, टुडे आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर, Narmeen is a student or she is a graduate? Narmeen, are you a student? I'm a student. I'm a first year student actually. First year student. Okay. Aisha Kudus, are you a first year student? No, I'm a third year student. Third year student. Now the point is, आज अगर आयशा कुद्दूस नरमीन को एक रिकमेंडेशन देती है लिंक्डइन के ऊपर, आई डोंट नो बोथ ऑफ यू गाइज आर ऑन द लिंक्डइन और नॉट, बल्कि शायद आयशा तो है क्योंकि आयशा से मेरी लिंक्डइन के ऊपर बात हुई थी। आई रिमेंबर आयशा इज ओवर देयर। आयशा आज नरमीन को एक रिकमेंडेशन देती है लिंक्डइन के ऊपर कि जी मैंने नरमीन के साथ काम किया इस सोसाइटी के अंदर एंड नरमीन इज अ ग्रेट टीम प्लेयर। नरमीन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन व्हाई? उसकी वजह यह है कि आयशा आज थर्ड ईयर में है, मे बी कल फाइनल ईयर में होकर ग्रेजुएट हो जाएगी। अनटिल देन जब नरमीन फाइनल ईयर में आएगी और ग्रेजुएट होने वाली होगी तो आयशा कुद्दूस जरूर किसी रैकेट्स जैसी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कर रही होगी। तो उस वक्त नरमीन की प्रोफाइल में लिखा आ रहा होगा कि आयशा कुद्दूस हु इज XYZ in a top multinational has given a recommendation to नरमीन। सो प्लीज अगर आप जूनियर स्टूडेंट हैं तो प्लीज सीनियर से रिकमेंडेशन लीजिए, और अगर आप इवन सीनियर भी हैं एक दूसरे को जरूर रिकमेंड करें। बिकॉज वाई? क्योंकि अगर आप पीयर टू पीयर भी हैं तो हर बच्चे की इंशाल्लाह कहीं ना कहीं जॉब तो लगेगी। 6 से 7 रिकमेंडेशंस आपने आज अगर ले ली तो आज से कुछ अरसे बाद ये बिटकॉइन की तरह या क्रिप्टो करेंसी की तरह वर्क करती हैं। ठीक है, इट गेट्स फ्लरिश। ये वो सीड्स हैं जो 4-5 साल बाद जाके आपको फ्रूट देंगे। अच्छा, अनदर पॉइंट, आज अगर आप लोग ये काम नहीं करते, व्हेन यू गेट प्रोफेशनल, ओके आप प्रोफेशनल हो गए, उस वक्त आपके पास टाइम नहीं है लोगों को रिकमेंडेशंस देने का, आपको जहन में भी नहीं रहेगा। और अगर रहेगा भी तो आपने उन लोगों के साथ उस तरह से काम नहीं किया होगा, वो आपको इस तरह से रिकमेंड कर रहे होंगे कि आई नो दिस इज अ प्रोफेशनल गाय। फॉर एग्जांपल टुडे इफ आई रिकमेंड हाजरा, आई विल से हाजरा यूज्ड टू बी अ वंडरफुल स्टूडेंट ऑफ माइन। बट मैं ये नहीं कहूंगा कभी भी कि मैंने हाजरा के साथ काम किया, हाजरा वाज वन ऑफ द बेस्ट कोलीग ऑफ माइन। दिस इज द डिफरेंस। ठीक है, तो रिकमेंडेशंस को दें भी और प्लीज रिकमेंडेशंस लें भी। राइट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, आगे बढ़ते। देयर इज अनदर गर्ल युज़मा खान, शी इज ऑल्सो माई स्टूडेंट, और आई डोंट नो वो भी यहाँ पे है या नहीं है। अगर वो होती तो उसकी प्रोफाइल को हम डिस्कस कर लेते। समरा इज ऑल्सो माई स्टूडेंट, शी इज फ्रॉम ज़ैबिस्ट, और Asma is also my student, she's from Zabist, she was from NAD by the way। और ये सारे के सारे स्टूडेंट्स ही हैं जो एक दूसरे को रिकमेंड कर रहे हैं। बिस्मा कंवल, खानसा मलिक, ये सारे के सारे स्टूडेंट्स हैं। सो एक एक दफ़ा इन सब बच्चों की प्रोफाइल्स मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि किस तरह की होनी चाहिए। ओके, अब बिस्मा कंवल की प्रोफाइल देखें। सो अगेन ऐसा पता चलता है कि ये इलेक्ट्रिकल की स्टूडेंट है, ऑब्वियसली कह रही है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर 2023 में हो जाएगी, पावर सिस्टम, ड्रिफ्ट ऑटोमेशन, ब्ला ब्ला ब्ला। Overall the profile looks fine। अच्छा, one more thing, please always be active on LinkedIn। कैसे? जो लोगों के पोस्ट आ रहे हैं ना उसके ऊपर उनको अप्रिशिएट करें। लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे आपके पोस्ट्स के ऊपर, ये मैं आपको बता दूं। लिंक्डइन एक ऐसी जगह है जहां पे लोग कोशिश करते हैं कि हम एक्सपोज हों, और लोग एक्सपोज होना पसंद भी करते हैं। ठीक है, there are a lot of activities by the way on the LinkedIn which you can do other than exposing। आप मैं आपको बताता हूँ क्या क्या कर सकते हैं। फाइन, दिस वाज द प्रोफाइल ऑफ बिस्मा कंवल। अब हम प्रोफाइल देखते हैं अस्मा की। अस्मा की प्रोफाइल भी हाजरा फरूक की तरह बहुत ही ज़बरदस्त है। अच्छा, आप अपनी प्रोफाइल पिक्चर इस तरह से भी लगा सकते हैं और कवर पिक्चर भी इस तरह से लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल कवर पिक्चर में इसने पीछे एक इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड लगाया, उसके बाद एक अच्छा सा कोट जो कि इसको पसंद था वो इसने लगाया। ओके, विच इज वेरी गुड। और उसके बाद ये लॉगिकोस में जॉब कर रही है। बट
इसके भी अगर आप पोस्टिंग देखें तो शी इज़ वेरी एक्टिव ऑन द लिंक्डइन और बहुत एक्टिवली ये पोस्ट करती है। इनके एक अब देखें, अगर हम इसका अस्मा का पोस्ट देखें तो इसके भी पोस्ट्स जो होते हैं उनके ऊपर कमेंट्स बहुत ही ज़्यादा आते हैं। फॉर एग्जांपल ये इसने एक अपना पोस्ट किया अपनी ग्रेजुएशन सेरेमनी का, 4790 लाइक्स, 658 कमेंट्स। आप ये देखते होंगे कि बहुत सारे लोगों ने पोस्ट किया होगा इस तरह का, 100, 150 या 200 से ऊपर किसी का नहीं जाता, लेकिन देयर इज समथिंग जिसने स्पाइक किया और 4790 यहां तक जो है वो रीच गई। ऐसा क्या है? इट्स ऑल अबाउट द पोस्टिंग। आप पोस्ट कैसे कर रहे हैं, आप पिक्चर क्या लगा रहे हैं, हमेशा फैमिली के साथ पिक्चर, और आपके हॉलमार्क्स, आपकी सेरेमनीज, आपकी अचीवमेंट्स, इस तरह के पोस्ट बहुत ज़्यादा जो है वो लिंक्डइन पे पसंद किए जाते हैं। प्लस आपके कनेक्शंस, आप इस अस्मा के काफ़ी सारे कनेक्शंस हैं एंड शी कीप्स ऑन पोस्टिंग। तो जब आप पोस्टिंग करते रहते हैं ना तो लोगों को पता होता है कि दिस पर्सन इज वेरी एक्टिव। ठीक है जी। सो हियर आर सम प्रोफाइल्स। I remember there is one more student of mine, his name is Osama, और let me check उसकी प्रोफाइल मैं आपको दिखाना चाहूँगा। His profile is very good। बॉयज़ के अंदर मैंने उससे अच्छी प्रोफाइल नहीं देखी, और मुझे उसका नाम मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। ओसामा का प्रॉब्लम ये है कि हम उसको ओ से भी लिखते हैं और हम उसको यू से भी लिखते हैं। सो हियर इज समथिंग जो कि जो है ना थोड़ा सा समटाइम्स कंफ्यूज करती है, बट हिज नेम इज फ्रॉम ओसामा, मोहम्मद ओसामा। ओके, मोहम्मद ओसामा बेटा। ओके बाबा काम कर रहे हैं। सॉरी बच्चों, सॉरी फॉर द disturbance of here is the guy। अगर आप इसकी प्रोफाइल देखें मोहम्मद उसामा की, he has made a really great profile। okay, technical head at NED Racers Formula blah blah blah, और look at this 23,000 फॉलोअर्स हैं इसके। ठीक है, इतने ज्यादा फॉलोअर्स हैं इसके लिंक्डइन के ऊपर। हाउ, नीचे चल के देखते हैं। सबसे पहले बहुत ज्यादा पोस्टिंग करता रहता है लिंक्डइन के ऊपर, अपनी अचीवमेंट्स लिंक्डइन के ऊपर प्लीज पोस्ट किया करें प्लीज। फिर बहुत ज्यादा लिंक्डइन पे एक्टिव भी रहता है। ये देखिए आप, हर जगह पे इसने कमेंट किया होगा और लोगों ने इसको टैग किया होगा और इसने लोगों को टैग किया होगा। नीचे आते हैं एक्सपीरियंस में NED रेसर्स, स्टूडेंट एनर्जी एट NED यूनिवर्सिटी, फिर वहाँ पे एक सर्टिफिकेट, फिर जिमको में रहा, ओके यहाँ पे भी सर्टिफिकेट, मैकेनिकल डिजाइन इंजीनियर, और फिर 5 और एक्सपीरियंसेस। नाउ यू सी हाउ सोशल इज दिस गाय। जहां पे जाता है पिक्चर लेते लिंक्डइन पे लगाता है। अभी इसकी रिसेंटली मुझे कॉल आई थी, इसने मुझे बताया था सर मुझे 3 कंपनी से जॉब ऑफर आएंगे लिंक्डइन के ऊपर। सो आई हेल्प हिम कि कौन सी ऑफर सेलेक्ट करनी चाहिए। ठीक है जी। और नीचे आए IBSA कोर्सेज, लाइसेंसेस देखे, सॉलिड वर्क से लिया हुआ है, सर्टिफिकेट्स लिए हुए। नीचे आए, सर्टिफिकेट्स खत्म ही नहीं होते, सप्लाई चेन में भी सर्टिफिकेट लिया हुआ है। सप्लाई चेन में आजकल हम इंटर्नशिप करवा रहे हैं सप्लाई चेन फॉर इंजीनियर्स के नाम से, जिसके अंदर इंजीनियर्स को ये सिखाया जा रहा है कि व्हाई इंजीनियर्स आर बीइंग प्रेफर्ड इन सप्लाई चेन। ठीक है, तो वो इनक्रेडिबल्स के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो ये करवाते हैं। तो उनका पेज अगर जाके लाइक कर लेंगे तो आपको पता चलता रहेगा जब दोबारा आनी है। उसके बाद वॉलंटियर एक्सपीरियंस। अब नाउ यू सी इतनी हैवी प्रोफाइल है इस बच्चे की। ठीक है, इसको किसी रेफरल की जरूरत नहीं है। अगेन इसके पास 8 के करीब रिकमेंडेशंस आई हैं और इसने 4 लोगों को दिए हैं। वजाहत खान जदून, अनस शेख, ये इसके इंटर्नशिप के सारे कोलीग्स थे जिनके साथ जो हमारे पास इंटर्नशिप हुई थी उसके अंदर सब बच्चों ने आपस में काम किया था। ठीक है जी। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। आप सब के सब मुझे जाके, अगर आप लोग मेरे साथ लिंक्डइन पे कनेक्टेड नहीं है तो यू कैन गो ऑन द लिंक्डइन,
You can search my profile and send a connection request. ठीक है, by the way I have also 16,000 something followers. मेरे connections भी almost इतने ही हैं. ठीक है, तो आप सबसे रिक्वेस्ट ये है कि प्लीज अपने कनेक्शंस बढ़ाएं, लिंक्डइन के ऊपर क्रिएटिव पोस्टिंग करें, अच्छी पोस्टिंग करें, और प्लीज बी एक्सपोज्ड ऑन द लिंक्डइन. लिंक्डइन के ऊपर बेतहाशा जॉब्स आती हैं. कैसे आएंगी? जाके कंपनीज को फॉलो करें. फॉर एग्जांपल, यस, एक चीज बताना मैं भूल गया. ओके, बीकन एनर्जी लिमिटेड, BEACON, बीकन एनर्जी लिमिटेड. ओके, इस कंपनी को देखते हैं. मैं आपको एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ यही एग्जांपल है, देयर आर अ लॉट. अगर आप बीकन एनर्जी के पेज के ऊपर जाते हैं, जैसे मैंने इसको फॉलो किया हुआ है, आप भी फॉलो करें, तो आपको इसकी पोस्ट नजर आएंगी. सो इफ यू टेक अ लुक, लास्ट पोस्ट इन्होंने 2 दिन पहले की अपने सीईओ के हवाले से. ठीक है, आप सोलर डिजाइन इंजीनियर दे आर हायरिंग. ठीक है, तो अगर आपके पास को तकरीबन 50 या 100 के करीब कंपनीज फॉलो होंगी, तो आपको उनकी 100 के करीब जॉब्स के बारे में पता चलता रहेगा कि कहाँ कब किसके यहाँ जॉब आई है. और वन मोर थिंग यू कैन डू, लिंक्डइन आपको कहता है आप अपने आप को रिक्रूटर को इंट्रोड्यूस भी करा सकते हैं. सो अगली स्ट्रेटेजी क्या होगी? एक और इंटर्नशिप लॉन्च हो रही है एक प्लेटफॉर्म से, जिसके अंदर मैं सिर्फ ये सिखाऊंगा आपको हाउ टू मेक, एक्चुअली उसके अंदर काम ये करना है कि जॉब हंटिंग स्ट्रेटजीज यूजिंग लिंक्डइन एंड अदर मीडिया, जिसके अंदर आपकी रिज्यूमेस ठीक करवाऊंगा, जिसके अंदर आपकी प्रोफाइल्स ठीक कराऊंगा. फिर आपको मैं ये सिखाऊंगा कि आपको लोगों को अप्रोच कैसे करना है. इस 1 घंटे के सेशन में आई कैन नॉट टेल यू अ लॉट, बट उस इंटर्नशिप में जो 8 वीक्स की, उसके अंदर आपको 1000 कंपनीज की डेटाबेस मिलेगी जो कि लिंक्डइन पे मौजूद है. आई एम डैम श्योर इंशाल्लाह 1000 कंपनीज में से कोई एक कंपनी ऐसी होगी जहां पे तुम्हें जॉब मिल जाएगी. Okay, बच्चों. So this is all from my side. Now, if you want to ask any question, you are feel free to ask. Yes, guys. Okay, sir, that was a very informative session and enlightening session, Mr. Fahad. I think to be LinkedIn is very important. और आपने जो यहाँ पे reasons present किए, तो those were precisely intuitive as well. So yes, I think from the audience, if anyone of you has any question, feel free to put them in the comment box below. You're most welcome. अगर आपको कोई छोटा सा भी question हो, you can like ask it. अच्छा, someone's asking, sir कहते हैं कि connection देखकर बनाना चाहिए. तो what do you think, quality is important or quantity? देखो, बात ये है कि अगर इफ यू आर न्यू टू द लिंक्डइन, ऑब्वियसली आपको जिन लोगों के साथ कनेक्ट होना है वो आपके ही फील्ड के लोग होने चाहिए, राइट? अब अगर फॉर एग्जांपल इफ नरमीन इज एन इंजीनियर, नरमीन यू आर इन द इंजीनियरिंग प्रोग्राम. Yes, mechanical engineering. Mechanical engineering program. Okay. Now let me give you an example. Give you the example of Narmeen because सामने नरमीन ही नजर आ रही है. ठीक है. तो नरमीन एक मैकेनिकल इंजीनियर है. सो नरमीन अगर अपना नेटवर्क इनहेंस करना चाहेगी, राइट, तो तमाम इंजीनियर्स को ऐड करेगी सबसे पहले. ठीक है. उसके बाद राइट नाउ शी इज इन मे बी फर्स्ट सेमेस्टर और फर्स्ट ईयर. ओके. अगला जिसको ऐड करेगी वो ऐड करेगी रिक्रूटमेंट कंपनीज को, उनके अंदर जितने भी रिक्रूटमेंट कंपनीज के लोग होंगे उनको ऐड करेगी. उसके बाद फर्दर ऐड करेगी मैकेनिकल इंजीनियर्स को जो कि इंडस्ट्री में जॉब कर रहे हैं. ठीक है, इस तरह के लोगों को आप ऐड करें. अच्छा, आपने भी प्रोफाइल देख के ऐड करना है कि अगर कोई बहुत ही बुरी किस्म की प्रोफाइल है, फाइन, उसको ऐड ना करें. लड़कियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर किसी को ऐड ना करें, मतलब आई मीन प्रोफेशनल्स को कनेक्ट करें. और अगर कोई भी बंदा आपको कोई लेफ्ट राइट किस्म का मैसेज लिखता है, फजूल किस्म का, नो नीड टू आंसर, सिंपली इग्नोर मारना है. ठीक है, आपका काम लिंक्डइन के ऊपर अपने काम के मैसेजेस को देखना है और उनको रिस्पॉन्ड करना है. हमारे यहाँ मर्द हजरात जो हैं उनके साथ एक बड़ा कॉमन प्रॉब्लम है लिंक्डइन के ऊपर. वैसे तो लिंक्डइन के ऊपर नहीं है, हर जगह ही है, लेकिन लिंक्डइन के ऊपर उनको ये समझ नहीं आती कि लिंक्डइन और फेसबुक और इंस्टा ये तीनों डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं. तो वो लिंक्डइन के ऊपर भी जो बच्चियां होती हैं उनको हेलो हाय
नाइस पिक्चर, लुकिंग गुड, इस किस्म के मैसेजेस वो लोग कर रहे होते हैं। तो अगर आपको किसी इस किस्म का कोई मैसेज आता है तो कोई जरूरत नहीं है रिप्लाई करने की, मैं सिंपली यही कहूंगा। ठीक है जी, एनी अदर क्वेश्चन? अच्छा जी, उसके बाद कह रहे हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिंक्डइन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिंक्डइन प्रीमियम विच इज़ बेटर फॉर स्टूडेंट। देखो जी, बात ये है कि लिंक्डइन प्रीमियम जो है ना वो मेरा तो है लिंक्डइन प्रीमियम, बट मेरा इसलिए लिंक्डइन प्रीमियम है, मेरा मुझे कंपनी ने लेके दिया हुआ है। लिंक्डइन प्रीमियम की निशानी ये होती है कि उसके ऊपर गोल्डन आई एन बना हुआ आता है लिंक्डइन का, ठीक है, लेकिन उसके आपको तकरीबन 7-8 हज़ार रुपये पर मंथ पे करने होते हैं। सो मेरे ख्याल में अभी बीइंग स्टूडेंट आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि उससे हटके आप जितना भी कुछ कर सकते हैं करें। देखिए, आप लिंक्डइन के ऊपर उसके फ्री कोर्सेज भी होते हैं। अगर आप यूट्यूब पे जाएं, लिखें हाउ टू गेट एनरोल इन अ लिंक्डइन फ्री कोर्स, तो आपको वो नजर आएगा। कोर्सेरा के कोर्सेज करके सर्टिफिकेट्स लिंक्डइन के ऊपर लगाएं, लिंक्डइन के कोर्सेज के सर्टिफिकेट्स लगाएं, इससे आपकी प्रोफाइल बहुत इंप्रूव हो जाएगी। ठीक है जी। और व्हाट इसके अलावा क्या क्वेश्चन था? ओके ओके ओके, टुमारो इज अ सेशन ऑन जॉब हंटिंग, यस वो है, वेयर वी कैन अपलोड आवर सर्टिफिकेशंस। ओके, सोहा फैज हैज आस्क्ड, सोहा इज आल्सो माय स्टूडेंट, शी इज नाउ वर्किंग इन अ वेरी गुड कंपनी। सर्टिफिकेशंस कहाँ अपलोड किए जा सकते हैं? देखो, जब आप अपनी प्रोफाइल बनाते हैं तो वहाँ पे देयर इज एन ऑप्शन टू अपलोड द डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, जब आप अपने पोस्ट करते हैं ना, जब आप उस जगह पे जाएंगे अपनी प्रोफाइल पे, तो वहाँ पे लिखा आएगा पोस्ट समथिंग न्यू, वहाँ पे आप अपना सर्टिफिकेट पोस्ट करें, वो ऑटोमेटिकली आपके फीचर्ड में आ जाएगा। या आप अपनी कोई डेजिग्नेशन ऐड करें और उसके अंदर आप अपनी कोई भी पिक्चर उसके अंदर अपलोड कर दें, वो ऑटोमेटिकली आपके फीचर में ऊपर नजर आना शुरू हो जाता है। Yes. ओके, हाउ टू ऐड हैशटैग्स। ठीक है जी, हैशटैग्स ऐड करने का अच्छा क्वेश्चन है। ओके, लेट मी शो यू हाउ टू ऐड हैशटैग्स। ठीक है, सबको मेरी प्रोफाइल नजर आ रही है? Yes, Clear? we can see it. We can see it. ओके, अपनी प्रोफाइल पे जाइए, जैसे मैं अपनी प्रोफाइल पे जा रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपके पास आएगा क्रिएटर मोड, मेरा ऑन हुआ हुआ, जिनके हैशटैग्स नहीं डिफाइंड उनका ऑफ हुआ होगा। आपने इस क्रिएटर मोड को ऑन करना है और यहाँ पे 5 हैशटैग्स डिफाइन कर देंगे। मैंने क्या डिफाइन किए हुए? IoT, IIoT, PLC नेक्स्ट, IoT गेटवे, ओके, डिजिटलाइजेशन, फाइन, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं एक को डिलीट करता हूँ IoT गेटवे को, और मैं कहता हूँ कि ओके, क्या ऐड करना चाहिए? इंस्पिरेशनल लीडर, ओके, इंस्पिरेशनल लीडर, ओके, ये मैंने किया एंड डन। और अब ये आपको यहां सामने नजर आ रहा है, इंस्पिरेशनल लीडर। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर नाउ। यहां पे जाके आप अपने हैशटैग्स डिफाइन कर सकते हैं। सर आपने सर आपने अचीवमेंट पोस्ट की बात की थी, बट आपकी प्रोफाइल, सॉरी ये नीचे हो गया मैसेज, आपकी प्रोफाइल में पोस्ट नज़र नहीं आ रही। अच्छा भाई, मैंने जो है अपनी लिंक्डइन की प्रोफाइल में अपने पोस्ट्स, जो अचीवमेंट वाले पोस्ट हैं वो अभी नहीं लगाए हुए। उसकी वजह ये है कि ये मेरी लिंक्डइन की प्रोफाइल जो है मेरी कंपनी की तरफ से स्पॉन्सर्ड है। इसकी वजह से मैं इसके अंदर से वही पोस्ट करूँगा जो कि मेरी कंपनी की प्रोडक्ट से रिलेटेड होंगे। जिस दिन मेरी कंपनी ने इसको स्पॉन्सर करना बंद कर दिया, उस दिन मैं अपने पर्सनल पोस्ट भी इसके अंदर कर लूँगा। मेरी एक लिमिटेशन है, क्योंकि मेरी प्रोफाइल मेरी कंपनी की तरफ से फंडेड है। ठीक है जी। बहुत सारे मैसेज एक साथ आ रहे जी। हाउ वी गेट दैट विच कंपनीज हैव टू बी कनेक्टेड। अच्छा, ये बड़ा अच्छा सवाल है। फॉर एग्जाम्पल, हु इज़ मोहम्मद तैयब। ओके, मुझे तैयब का डिपार्टमेंट नहीं पता है, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल तैयब भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है, तो मैकेनिकल की बहुत सारी, एक तो हर कंपनी जो इंडस्ट्री है उसके अंदर मैकेनिकल के लोग चाहिए। किस डिपार्टमेंट में? मैकेनिकल मेंटेनेंस में, प्रोडक्ट डिज़ाइन के अंदर, मैकेनिकल यूटिलिटीज़ के अंदर, हर जगह पे मैकेनिकल के लोग चाहिए। तो आपने
कल वैसे बाय द वे जॉब हंटिंग वाला जो सेशन है उसके अंदर मैं बताऊंगा कि आपने किस तरह से कंपनीज को कनेक्ट करना है और कौन सी कंपनीज को करना है। ठीक है, आप 1000 कंपनीज को अगर कनेक्ट कर लेते हैं लिंक्डइन के ऊपर, तो आपको 100 कंपनीज के अंदर से इंशाल्लाह ऑफर्स आना शुरू हो जाएंगे। कैसे करना है, ऑब्वियसली इसको डिटेल के अंदर डिस्कस करना पड़ेगा। कौन कौन सी कंपनीज मैकेनिकल इंजीनियर्स को जॉब देती हैं, दैट इज अ कंप्लीटली डिफरेंट सब्जेक्ट, जो कि मैं कल इंशाल्लाह सुबह वाले सेशन में डिस्कस करूंगा। ओके, what is the difference between Indeed and LinkedIn? Indeed is completely different thing. Indeed is not a professional recruitment forum. Indeed के ऊपर इंटरनेशनल जॉब्स आती हैं। LinkedIn is just like LinkedIn का जो इंटरफेस है ना, वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है और वो फेसबुक की तरह है। वहाँ पे लोग अपनी अचीवमेंट्स भी डालते हैं। Indeed जो है सिर्फ और सिर्फ एक जॉब पोस्टिंग वेबसाइट है, दैट्स इट। और काइंडली, okay, somebody said, sir, kindly define what skills are needed to share on and what we need to neglect. Very good question. I don't know who is this student is, but it's 18EL123. Okay, देखो भाई बच्चों, आपने अपने मिसाल के तौर पे सर्टिफिकेट्स आप लगा सकते हैं। आप कहीं इंटर्नशिप करते हैं तो एक इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट अलोंग आपकी अपनी पिक्चर बहुत ज्यादा जरूरी है आपकी पोस्टिंग के अंदर, बिकॉज द लिंक्डइन फैमिली वांट टू सी यू हैप्पी। ठीक है, आपको उसके ऊपर क्रिएटिव पोस्टिंग भी करनी है। मैं हमेशा एक किताब देता हूं बच्चों को पढ़ने के लिए, हाउ टू विन एंड इन्फ्लुएंस फ्रेंड्स एंड पीपल। उस किताब को अगर आप पढ़ना शुरू करें तो उसके अंदर बहुत सारी ट्रिक्स लिखी हुई है जिसके थ्रू आप लोगों के साथ लोगों के फेवरेट बन सकते हैं। पिक वन ऑफ द ट्रिक, अपने किसी दोस्त के साथ एक पिक्चर बनाओ और लिखो कि मैंने इस किताब में ये पढ़ा था एंड इट्स वर्किंग। लिंक्डइन की फैमिली तुम्हें बहुत अप्रिशिएट करेगी। प्लस अगर उस किताब का रेफरेंस लिखोगे तो वो बंदा जिसकी वो किताब है वो भी तुम्हें कमेंट करेगा। लिंक्डइन के ऊपर सारे के सारे गोरे बैठे हुए और वो हर बंदे को देख रहे। ठीक है, आई एम सॉरी, बहुत सारे जो है वो मुझसे क्वेश्चंस जो हैं वो मिस आउट हो गए हैं। मैं कोशिश करता हूँ सबके क्वेश्चंस का जवाब देने की। why do we prefer only LinkedIn, why not other application, what other application are there any? देखो बात ये है कि इस बात से मेरा इनकार नहीं है कि आप बाकी एप्लीकेशंस के ऊपर भी जाएं, आप ज़रूर जाएं, बट पूरी दुनिया इस वक्त लिंक्डइन पे मौजूद है और हमेशा उस प्लेटफॉर्म पे जाना चाहिए जहाँ पे सारे लोग आपको देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसीलिए हमेशा लिंक्डइन की बात करता हूँ क्योंकि सबका एक स्टैंडर्ड लिंक्डइन है। मिसाल के तौर पे मैं आपसे ही कहूँगा कि यार कम्युनिकेशन तो एसएमएस पे भी हो सकती है, बट वाई व्हाट्सएप? द पॉइंट इज पूरी दुनिया व्हाट्सएप पे चली गई है। ठीक है, दिस इज द रीजन कि व्हाट्सएप पे आना जरूरी है। ओके, इसके बाद क्वेश्चन है जी, बुक का नाम मैंने बता दिया, हाउ टू विन एंड इन्फ्लुएंस फ्रेंड्स एंड पीपल, डेल कनेक्टनी की बुक है, जरूर पढ़िएगा। अच्छा जी, उसके बाद व्हाट काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म इज आई ट्रिपल ई कोलैबोरेट? ओके, देखो आई ट्रिपल ई ये वुमेन इन इंजीनियरिंग, हर तरह की सोसाइटीज, कोई सोसाइटी बुरी नहीं है, हर सोसाइटी बहुत अच्छी है। जरूरी नहीं है कि आप किसी एक सर्टेन सोसाइटी का पार्ट हो, आप सारी सोसाइटीज का पार्ट हो। मैं अगर आपकी जगह होता तो शायद मैं पढ़ाई में बहुत ही कम ध्यान दे रहा था, मैं आपका सोसाइटीज में होता। उसकी वजह यह है कि जब आपकी पहली जॉब लग जाती है ना तो वहां तक आपकी जीपीए काम आती है, उसके बाद थ्रू आउट आपकी मैनेजरियल स्किल्स काम आती हैं और सोसाइटी के बच्चे इन कामों में चैंपियन होते हैं। ठीक है, तो सोसाइटीज को ज्वाइन करें, ये ना सोचें कि कौन सी सोसाइटी, सोसाइटी को ज्वाइन करें, मेक योर बेस्ट इन द सोसाइटी और उसको लिंक्डइन पे पोस्ट करें कि जी मैंने ये सोसाइटी ज्वाइन की, इससे पहले ये हो रहा था और मेरे आने के बाद ये होना शुरू हुआ और दिस इज व्हाट आई हैव अचीव्ड। लिंक्डइन आपसे पूछता है आपकी अचीवमेंट क्या है, डालें। आपको पता है रोज आप कुछ ना कुछ अचीव करते हैं अपनी जिंदगी में। प्रॉब्लम ये कि हमें खुद नहीं पता कि इस अचीवमेंट को हमें शो कैसे करना है। लिंक्डइन इज द राइट प्लेटफॉर्म। ओके, फॉर जॉब हंटिंग कैन आई शेयर द लिंक? अच्छा, जॉब हंटिंग के लिए आप जो है वो कोई भी बच्चा यहाँ पे अगर उस ग्रुप का पार्ट है तो बता दे कल जो सेशन होना है। ओके, उसके बाद कह रहे जी, कैन वी अपलोड सर्टिफिकेशन वी हैड कंप्लीटेड? हाँ हाँ, कोई मसला नहीं है, आप 6 महीने पुरानी सर्टिफिकेशन भी डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है, बट कोशिश करें साथ अपनी एक अच्छी पिक्चर भी लगाएं ताकि लोग देखें कि हु यू आर, और स्माइलिंग पिक्चर होगी तो बहुत अच्छा है। ओके ओके, ठीक है। और हाउ वी कैन ज्वाइन जॉब हंट, वो कल हो जाएगा आपके लिए। बट इंडीड का भी मैंने जवाब दे दिया।
आई होप कि मैंने सर आपने अचीवमेंट की पॉजिटिव अपलोड सर्टिफिकेशन नोट, आई होप मैंने सारे क्वेश्चंस के आंसर दे दिए। आई एम इनक्रेडिबल्स टीम मेंबर, ओके फाइन, जो है वो उससे बात कर ले। ओके ओके ओके, गुड गुड गुड। अगर किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन मिस हो गया है तो दोबारा से चैट बॉक्स में लिख दे, अदरवाइज आई थिंक कि मैंने सबके क्वेश्चंस का आंसर दे दिया। जी सर, I think nobody has any more questions. ओके फाइन बच्चों, थैंक यू वेरी मच फॉर योर सर अचीवमेंट की अगर बहुत पहले की हो तो कोई मसला नहीं है, आपने अचीवमेंट जब भी की हो, इम्पॉर्टेंट ये कि आप ही ने की हुई, ठीक है। सो आप एक बहुत अच्छा सा पोस्ट इस तरह से बना सकते हैं कि रिकॉलिंग, फॉर एग्जाम्पल उरूज शौकत सेठ, उसने कुछ अचीवमेंट किए। उरूज क्या अचीवमेंट थी, आप कौन सी यूनिवर्सिटी से और कौन से डिपार्टमेंट से हैं, मैं आपको एक एग्जाम्पलीफाई कर देता हूँ कि किस तरह का पोस्ट आप बना सकती हैं। सो उस तरह का बना लीजिएगा, उससे मिलता जुलता बना ले। ओके मेरे ख्याल में उरूज, अच्छा नस्ट भी यहीं से है आप, ओके ठीक है। तो अगर आपने कुछ अर्सा पहले कोई सर्टिफिकेट लिया है तो यू कैन से, फॉर एग्जांपल तुम एक सब्जेक्ट बना सकती हो कि ओल्ड गोल्ड मेमोरीज 2019 20 ब्ला ब्ला ब्ला, कि इतने साल पहले मैंने ये अचीव किया और मुझे लगता था कि इसको अचीव करना बहुत मुश्किल है, बट इट्स ऑल अबाउट द कॉन्फिडेंस, इट्स ऑल अबाउट द डिटर्मिनेशन, और ये सारी चीज़ें मेरे अंदर, मेरे जो कोलीग्स हैं उनके नाम लिख देना, उनकी तरफ से इंजेक्ट हुई, एंड इवेंचुअली आई अचीव दिस। और थैंक यू वेरी मच फॉर नस्ट फलानी टीम फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। 4-5 लोगों को मेंशन करना, अच्छी सी अपनी भी एक पिक्चर लगाना, उस अचीवमेंट सर्टिफिकेट की पिक्चर लगाना, ये पोस्ट बहुत छा जाएगा, ठीक है। तो इस तरह की पोस्ट आप कर सकते हैं। ओके जी, उसके बाद फिर क्या क्वेश्चन आया था सर, हाउ मच डिस्क्रिप्शन ऑन द पोस्ट। हाँ, ये एक अच्छा सवाल है। देखो, लिंक्डइन के पोस्ट के ऊपर जो डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए वो बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आपको ब्रीदिंग स्पेस जरूर देनी है, एक साथ ही नहीं पूरा पैराग्राफ लिख दिया। आपकी जो भी बात है छोटे छोटे पैराग्राफ में 2-3 जगह होनी चाहिए। देखो, एक कॉन्सेप्ट समझना मार्केटिंग का, होता है ब्रीदिंग स्पेस। आपकी आंखों को जो टेक्स्ट पर अच्छा लगता है ना दिखने में, आप उसको पढ़ते हैं, लेकिन अगर कोई ऐसी किताब जिसके अंदर एक ही पैराग्राफ में पूरी बात लिखी जाए, आप उसको बंद करके रख देते हैं, नहीं पढ़ना भाई, बहुत ज्यादा है। लेकिन पॉइंट्स में जो चीजें होती है ना, वो इंसान को समझने में आसानी होती है। तो पोस्ट का राइटअप बड़ा इंपॉर्टेंट है और बड़ा केयरफुली डिजाइन करना है। अगर आपको इस चीज में हेल्प चाहिए तो आप उन बच्चों के पोस्ट देखिए जिनका मैंने आपको बताया है, लाइक बहुत सारे बच्चों के पोस्ट मैंने यहाँ दिखाए हैं, उनको देख के आप हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, फिर कह रहे हैं शुड राइट टू एंगेज, हाँ मैंने तलहा एहसन का सवाल का जवाब दे दिया है। उससे अगर नीचे आए तो ओके ओके ओके, ह्यूज लिस्ट, अच्छा जी उरूज कह रही है ह्यूज लिस्ट ऑफ अचीवमेंट है पास से। तो बेटा उरूज, आप जो है ना, अगर आपके पास 4-5 अच्छी अचीवमेंट्स भी हैं तो हर 2 हफ्ते बाद अपनी कोई एक अच्छी अचीवमेंट पास्ट की जरूर लगाएं। अच्छा, फिर एक बच्चा कह रहा है जी हाउ मच इंपॉर्टेंट इज जीपीए इन गेटिंग योर फर्स्ट जॉब और एनी ऑफर फ्रॉम अ कंपनी। देखो, ये हर बच्चे का सवाल होता है मुझसे, जब भी मैं किसी भी सेशन में आता हूँ बच्चे ये सवाल ज़रूर करते हैं, और मेरा हमेशा जवाब ये होता है कि डिपेंड करता है उस ऑर्गेनाइजेशन को क्या चाहिए। अगर आप किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हैं जिसकी रिक्वायरमेंट ये है कि उनको XYZ, जब गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं तो वहाँ पे जीपीए हाई चाहिए होती है, तो वहाँ पे इस जीपीए की ज़रूरत है। लेकिन आप अगर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में जाते हैं जिन्होंने आपसे नहीं मांगा कि हमें इतनी जीपीए चाहिए, तो वहाँ पे जीपीए से हट के एक और बहुत बड़ी दुनिया है जिसका नाम है सॉफ्ट स्किल्स। मुझे याद है भी रिसेंटली वन ऑफ माय स्टूडेंट इज बीइंग अ पार्ट ऑफ अ टॉप मल्टीनेशनल। अगर आप इवन एंग्रो का भी इंटरव्यू दें, यूनिलीवर, पीएनजी या एवेंसियन का, तो 30% उनका टेक्निकल और 70% आपका सॉफ्ट स्किल है, जिसके अंदर आपकी पर्सनालिटी, लीडरशिप, सॉफ्ट स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, इंटरपर्सनल स्किल्स, ये सारी की सारी चीज़ें उसमें आती हैं, जो कि हमेशा मैं अपने वेबिनार्स में और अपने अपने फिजिकल इवेंट्स में जिसके ऊपर चीज़ें बता रहा होता हूँ कि आपको अपनी सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर काम करना है।
अपनी प्रेजेंटेशन पे काम करना है, ठीक है। उसके बाद जी कैन यू शो हाउ टू कनेक्ट अदर मेंबर, ये तो बड़ा आसान है, मैंने मतलब आई मीन आप किसी को भी जाके आप जो है वो कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज दें, इट्स वेरी सिंपल। हाउ मच जीपीए एटलीस्ट दे नीड सर, अगेन मुझे इसका कोई आइडिया नहीं है, डिपेंड क्राइटेरिया क्या है, ठीक है। Okay, I hope I have answered almost more than 20 questions. और अभी भी अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो you can ask. Okay, can you suggest a good platform to improve soft skills? की ये इंतहाई मुश्किल काम है. Who asked? फबीहा मुगल. फबीहा, कैन यू प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ? आप कौन सी यूनिवर्सिटी से हैं और कौन से डिपार्टमेंट में से हैं? बच्चों, ये जो फबीहा का क्वेश्चन है, भाई ये एक साहब हैं आयशा कुद्दूस, जो कि परेशान है कि इनको सर्टिफिकेट कब मिलेगा। तो भाई सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा बच्चों, सर्टिफिकेट की टेंशन ना लिया करो। ज़िंदगी में सर्टिफिकेट्स की से बहुत ज़्यादा या बहुत बड़ी दुनिया एक है जिसके अंदर तुम्हारी अपनी पर्सनालिटी है, ठीक है। तो उस बच्ची का सवाल मुझे अच्छा लगा, उसका नाम है फबीहा मुगल। वो कहती है कि अच्छा प्लेटफॉर्म बताए अपनी सॉफ्ट स्किल्स को इम्प्रूव करने का। सो देयर इज नो प्लेटफॉर्म। इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये सॉफ्ट स्किल्स का कि देयर इज नो प्लेटफॉर्म। इनक्रेडिबल्स के नाम से मैंने ही एक ऑर्गेनाइजेशन बच्चों की बनाई है जिसके अंदर मैं सबको हेल्प कर रहा हूँ अपनी सॉफ्ट स्किल्स को इम्प्रूव करने की। उसके अंदर इंडस्ट्रीज के साथ कनेक्शंस हो रहे हैं, उसके अंदर मैं मोटिवेशनल सेशंस लेता हूँ। सो व्हाट आई कैन डू इज, मैं जितना कर सकता हूँ बच्चों के लिए मैं करता हूँ। मैं बच्चों को सॉफ्ट स्किल्स इंप्रूव करने के लिए उनकी हेल्प करता हूँ, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करवाने की कोशिश करता हूँ। यू ज्वाइन इनक्रेडिबल्स, उस टीम का पार्ट बने, ऑटोमेटिकली आपकी चीज़ों पे वर्किंग होना शुरू हो जाएगी। प्लस हर यूनिवर्सिटी के अंदर, अब जैसे एनईडी की मैं बात करूँ तो एनईडी के अंदर एक सेशन वो मेरा करवा रहे हैं इंजीनियरिंग एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर, दैट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन सॉफ्ट स्किल्स। तो आप की यूनिवर्सिटी के अंदर अगर कोई फिजिकल इवेंट हो सकता है तो उसके अंदर आई कैन कम एंड आई कैन हेल्प यू हाउ टू इम्प्रूव योर सॉफ्ट स्किल्स। इसके साथ साथ अगर आपको अपनी सॉफ्ट स्किल्स इंप्रूव करनी है तो ये जो होते हैं सर्टिफिकेशंस होती हैं डिफरेंट, ये होते हैं हमारे कॉर्पोरेट ट्रेनर्स होते हैं, वो ये काम करवा रहे होते हैं, बट वो बड़ी महंगी होती है, 25-30 हज़ार रुपए की एक होती है। सो बेहतर ये है कि आपकी यूनिवर्सिटी में जितने भी सेशंस हो रहे हैं वो ज्वाइन करें, इनक्रेडिबल्स को ज्वाइन करें, वहाँ पे ये मैं सारी चीज़ें करवा रहा होता हूँ, ठीक है जी। उस बच्ची के बाद एक और क्वेश्चन था कि हाउ मच प्रोफाइल स्ट्रेंथ मैटर। बहुत ज़्यादा, आपकी प्रोफाइल ही सब कुछ होती है। आई मीन मैं कहूँगा कि आपकी पर्सनालिटी जितनी इंपॉर्टेंट है उतनी आपकी प्रोफाइल इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। तला हसन कह रहे हैं व्हाट शुड बी पोस्टिंग रेट इन अ डे। देखो एक ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये नहीं है कि आपने हर दूसरे दिन कोई ना कोई पोस्ट करना है, हर पोस्ट के दरमियान आपने कम से कम 15 से 20 दिन का गैप देना है, ठीक है। 20 दिन के बाद आपने कोई ना कोई पोस्ट करना है, क्योंकि अगर आपने रोज पोस्ट करना शुरू कर दिए तो लिंक्डइन के लोग उसको इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। आगे चलते हैं। ओके, will it affect our profile if anyone has written uppercase letter in his or her name on LinkedIn? भाई बात ये है कि अपर केस लेटर्स जो है ना वो बोल्ड होते हैं बहुत ज्यादा, दिस इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ बीइंग एग्रेसिव, ठीक है। तो अवॉइड करें इस किस्म की चीजों से। आगे चलते जी, सॉफ्ट स्किल्स इज ऑल अबाउट पार्टिसिपेटिंग, ठीक है। उरूज कह रही है कि हाउ कैन वी ज्वाइन इनक्रेडिबल्स। भाई तला एहसन, इनक्रेडिबल्स का जो लिंक्डइन का लिंक है वो ज़रा चैट बॉक्स में डाल दें ताकि ये बच्चे जो हैं इनक्रेडिबल्स को सब्सक्राइब कर लें, और वहाँ पे आप यू कैन राइट आई वांट टू ज्वाइन इनक्रेडिबल्स। इनक्रेडिबल्स की जो टीम है वो आपको इनक्रेडिबल्स के अंदर एक इंटरव्यू होता है आपका प्रॉपर, जिस तरह से बाकी सोसाइटीज़ में इंटरव्यू होते हैं, एक आपका इंटरव्यू होता है। उस इंटरव्यू में एक बोर्ड बैठा हुआ है लोगों का, वो आपको देखता है और फिर आपके विजन के हिसाब से आपको फिर वो इंडक्ट कर लेते हैं। ओके जी, व्हाट एल्स क्वेश्चन, हाउ टू ज्वाइन, हाउ टू सर कैन वी ज्वाइन इन एनईडी सेशन। ये मुझे नहीं पता। 17IN04 बेटा आप कौन सी यूनिवर्सिटी से हैं? मुझे इस बारे में बिल्कुल नहीं पता, आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते, बिकॉज वो एनईडी का ही एक इवेंट है। यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक जो इवेंट होते हैं मेरे ख्याल में वो सब बाहर की यूनिवर्सिटी के लोग उसको कर सकते नहीं कर सकते, आई डोंट नो। इसमें मैं आपको नहीं गाइड कर सकूंगा, आई एम सॉरी, ठीक है जी। बच्चों आप लोग थैंक यू वेरी मच फॉर योर इंटरेस्ट। तुम लोगों के क्वेश्चंस
जितने आए हैं उसको देख के मुझे लग रहा है कि तुम लोगों को ये सेशन बहुत ज़्यादा तुम लोगों के लिए हेल्पफुल जी। रहा होगा। और अ बिग थैंक्स टू द टीम ऑफ नस्ट जिसने आप सब बच्चों के लिए इतना अच्छा सेशन अरेंज किया, बिकॉज अगर ये लोग ये काम ना करते तो आप लोगों ने आज जितना कुछ सीखा ये आप लोग ना सीख पाते। सो गॉड ब्लेस दिस ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑल दीज वेरी यंग स्टूडेंट्स Thank you, sir. जिन्होंने ये Thank you. सब आपके लिए किया। And a big thank you from all the members of IEEE WIE NUST PNEC student team और हर ऑडियंस मेंबर्स की तरफ से भी। और आई थिंक हम जितनी enthusiastic हमारी ऑडियंस आज थी, आई एम प्रिटी श्योर आपकी जो टॉक है वो एक मेजर स्टेप एज अ मेजर स्टेप सर्व किया होगा फॉर इंडस्ट्रियल सक्सेस फॉर मेनी ऑफ द पीपल। तो सर आई एम रियली ग्रेटफुल टू हैव यू हियर टुडे और थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग आउट टाइम फॉर अस। यूर वेलकम, यूर वेलकम। इंशाल्लाह फिर कभी आप सब बच्चों से किसी न किसी और प्लेटफॉर्म पे, या हो सकता है कि आयशा और नरमीन दोबारा कोई रिलेटेड सेशन अरेंज करवाएं एंड यू गाइस सी मी अगेन इंशाल्लाह विद सर, इंशाल्लाह सर। ओके Okay, बच्चों। guys, so as we conclude, I'd like to remind all the audience members that you'll receive your certificates in a couple of days through email. So make sure you're keeping a check on that. And thank you so much, everybody. Take care. Allah Hafiz. See you. Can we have Bye. a group photo? Okay, yes. Can you all please turn on your cameras? Are you allowed to do that though? Can someone from the audience Oh, let wait a me know? second, wait a second. Yeah, let me change the setting. Please, guys, turn on your cameras. I think you're allowed to do it now. Let's come back to the presentation.